Good morning, students. How are you? I hope you will good and fine. Now, my dear student, as I explained you about exercise 6.1, today we are going to start 6.2 and 6.3. I will complete today. So, let me start exercise 6.2. Exercise 6.2. First of all, we will do exercise 6.2. In this equation, this new exercise, I will do question number 3. I am going to explain question number 3 because 1 and 2 are so easy. 3 is given that simplify question number 2. 5 power 8 upon 5 power 5 into 5 power 3. 5 power 8 upon 5 power 5 into 5 power 3. So, in this question, first of all, we will see there are in division section 5 power 5 into 5 power 3. As we know that if base are same, then power will be add. If in base are same in multiplication, then power will be add. So, first of all, you will write 5 power 8. Now, base are same, so you will write here only one time. 5 plus 3. Power will be 8 and 5 plus 3. So, 5 power 8 upon 5 power 8. 5 power 8 upon 5 power 8. As we know that in division section, if base are same, then power will be minus. As we know that the exponent in log, when base are same, if multiply, then power will be add. So, if base are same, if the sign of division, that power will be minus. So, we can write here like 5 power 8 minus 8. 5 power 0. As we know that if any number have power 0, it will be 1. It will be 1. So, it will be 1. So, this answer will be 1. Okay? I hope you can understand from this question. Okay? Note down. Now, I am going to explain in question 4. This is also simplified. Now, we can see question number 3. In question 3, 5 square whole power 3. 5 square whole power 3 into 5 power 4 into 5 power 4 divided by 5 power 7. Divided by 5 power 7. Now, as we know that if any number has power, something power, but whole power will something, so power will be add. Power will be add. So, we can write here 5 power 5. 5 power 5 into 5 power 4 divided by 5 power 7. Okay. Now, base are same. If base are same, then we can say, sorry student, here will be 2 3 is 6. It will be 2 3 is 6. So, we can write base are same now, bases are same. So, you can write 5 power 6 plus 4. 5 power 6 plus 4. Because base are same, base यहाँ पे सेम है, तो पावर क्या होगा? ऐड होगा. पावर को ऐड कर लोगे. Divide by 5 power 7. Okay. Now 6 plus 4 equal to 5 power equal to 5 power 10. 5 power 10. Divide by 5 power 7. No. As you know that if base are same, then power will be minus. If base are same, then power will be
minus. So we can write 5 power 10 minus 7 equal to 5 power 3. 5 power 3 and 5 power 3 means 5 into 5 into 5. 5 5 ja 25. 25 5 ja 625. Now 625 will your answer. Okay? Let me explain one more time. इसमें था क्या 5 का स्क्वायर और पावर 3 into 5 पावर 4 डिवाइड बाय 5 पावर 7. तो 2 3 क्या होगा आपका 6 हो गया. 5 पावर 4 यहाँ रहने देंगे. 5 पावर 7 कर देंगे. Bases are same, base same है. Then we can write one time and power will be add 6 plus 4 10 हो गया. Divide by 5 power 7. 5 power 10 divided by 5 power 7. Bases are same. Then you can write here one time at 10 minus 7. 10 minus 7 will be 3. 5 power 3 equal to 625. Okay? Note down. Now my dear student, in question 5 given that find the value of x. Find the value of x. Here we will find the value of x. 2 by 7 power minus 3 into 2 by 7 power minus 11 equal to 2 by 7 power 7x. So here we, if we see here, हम यहाँ पे देखते हैं bases are same. Bases are same. If bases are same and sign of multiply, then power will be add. Power will be add. So you will write base first of all one time and power will be add. Minus 3 plus minus 11. Minus 3 plus minus 11 equal to 2 by 7 power 7x. Now we can see here that both sides base are same. Both sides base are same. दोनों साइड्स के बेस सेम है तो बेस को क्या कर दो हटा दो वहां से तुरंत बेस को हटा दो. यहाँ क्या होगा आपका minus 3 plus minus 11 equal to 7x. Minus 3 and minus 10 will be minus 14. Minus 14 equal to 7x. Minus 14 equal to 7x. X equal to the sign between 7 and x is suppose that multiply. So if you change the side, it will be divide. Minus 14 by 7. 7 to the minus 14. minus 2 आंसर will come. ओके करना क्या था आपको देखो बेस सेम थे वो साइन मल्टीप्लाई करता हूं पावर क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा. पावर ऐड करेंगे -3 प्लस -11 बाकी बेस को वन टाइम ऐड करेंगे इधर जो है उसको ऐसे ऐड कर देंगे. अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में बेस सेम है बेस को क्या कर दो आप हटा दो. बेस को हटा दोगे तो -3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है माइनस लगा दो इक्वल टू 7x. तो -3 एंड -11 क्या होगा -14. -3 -11 -14 ऐड करते हैं इक्वल टू 7x. और 7 और x बीच कोई साइन नहीं क्या मानते हैं मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं. साइड चेंज होगा तो डिवाइड 7 से डिवाइड करके 7 को जा 14 -2 आपका आंसर आ जाएगा. ओके नोट डाउन कीजिए. Now बच्चों if we come question 7 given that by what number should we multiply -8 power -1 to obtain a product equal to 12 power -1. क्वेश्चन में ये है कि जो -8 की पावर -1 में है उसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 12 की पावर -1 मिल जाए. लेकिन चलो मान लेते सपोज करते हैं उसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं. लेट बी मल्टीप्लाई बाई x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 पावर -1 इंटू x. ठीक है कुछ नहीं है ना कि -8 पावर -1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें -12 की पावर -1 मिल जाए कि हमें -12 की पावर -1 मिल जाए. ठीक है ये क्वेश्चन था हमारा. तो जैसे कि हम जानते हैं कि इफ मल्टीप्लाई कोई साइड चेंज होगा तो डिवाइड कर देते हैं. x इक्वल टू -12
पावर -1 -8 पावर -1, ठीक है। -8 पावर -1 नीचे चला गया आपका, ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं कि पावर अगर सेम है दोनों में, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो पावर को 1 टाइम राइट कर देते हैं होल करके। क्या हो गया इसको -12 अपॉन -8 पावर -1, ठीक है। पावर को हमने 1 टाइम राइट कर दिया। तो देखिए माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। अब 12 और 8 दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, कट कर दो, 4 3 जा 4 2 जा, तो इससे क्या होगा 3/2 पावर -1, 3/2 पावर -1। So as we know that if we want to change negative to positive, so it will be reciprocal। इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, ये क्या होगा 2/3, 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था कि -8 पावर -1 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें ये मिल जाए। तो हमने मान लिया कि x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड, तो ये डिवाइड आपका नीचे चला आया। अब पावर सेम है, जब पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो तो उसको 1 टाइम राइट कर देते हैं। तो हमने ऊपर 1 टाइम राइट कर दिया, तो -12 अपॉन -8 हो गया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका ना। फिर और 8 दो किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 4 2 जा, ये आपका 3/2 पावर -1 हो गया। अब जानते हो कि पावर में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो रेसिप्रोकल करते हैं 2 ऊपर और 3 नीचे, 2/3 आपका आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन। Now student, I am going to explain question 12. This is last question of exercise 6.2. Simplify. Now here are question second. 5 power -1 minus 4 power -1 plus 2 power -1 minus 3 power -1 इसमें पावर आपको -1 दिया, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 5 पावर -1 है, तो इसको -1 हटाने के लिए क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। नीचे कुछ नहीं मानते, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं ना, यहाँ भी सपोज कर लेते हैं 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 कर लेते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या होगा आपका 1/5 -1/4, ठीक है, होल पावर -1। ऐसे प्लस यहाँ भी कर दो, क्या होगा आपका 1/2 -1/3 पावर -1, ठीक। अब पहले से सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है, देन पावर को पॉजिटिव करेंगे। आप देखो एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो इस कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 4 1 जा 4 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 4 जा 20 पावर -1 प्लस 3 1 जा 3 2 1 जा 2 2 3 जा 6 पावर -1 इक्वल टू 4 में से 5 -4, 4 में से 5 -4 तो क्या होगा आपका -1। यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है, क्या होगा आपका -1, तो -1/20 पावर -1। हमने 4 से 5 माइनस किया तो आपको -1 आया अपॉन 20 पावर -1 प्लस यहाँ होगा आपका प्लस 2 माइनस होगा, 3 से 2 माइनस होगा आपका 1/6 पावर -1, 1/6 पावर -1। अब देखिए यहाँ क्या होगा आपका पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा पॉजिटिव करने के लिए, 20 ऊपर और माइनस नीचे, ये होगा आपका -20, ये होगा आपका -20, ठीक है, प्लस ये क्या होगा आपका 6 ऊपर और 1 नीचे, तो ये होगा आपका 6, 1 नीचे लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस प्लस होता है माइनस, सो -20 प्लस 6 क्या होगा आपका माइनस प्लस माइनस, और साइन वो लगाते हैं जिसका नंबर बड़ा होता है। तो 20 में से 6 माइनस तो 14 हो गया, तो साइन कौन सा लगाएंगे जिसका नंबर बड़ा होगा, साइन माइनस लगाएंगे बिकॉज 26 से बड़ा है, तो -14 आपका आंसर ये आ गया। तो फिर से एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिए यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे था ये कि
5 पावर -1 -4 पावर -1 2 पावर -1 -3 पावर -1। पावर में अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव चेंज करके रेसिप्रोकल ऑलवेज करते हैं। d1/5 को -1/4 हो गया होल पावर -1, ऐसे 1/2 -1/3 हो गया होल पावर -1। अब 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 पावर -1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 पावर -1, 4 से 5 -1 आ गया -1 -1/20 होल पावर -1, ठीक है। प्लस 3 से 2 -1/6 होल पावर -1। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, बिकॉज पावर क्या है -20 ऊपर आ गया, तो 20 है तो -1 से डिवाइड 20 में तो आपको -20 आएगा ना, तो -20 हो गया। ये 6 ऊपर गया, 6 होकर नीचे वाले की कोई जरूरत है नहीं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 20 में 6 माइनस हुआ 14 और साइन कॉस हो गया आपका माइनस का। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। Now student, we are going to start exercise 3.6.3। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, समझिए इसमें क्या है। सर राइट द फॉलोइंग नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 3 दिया है, राइट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कैसे करेंगे समझे यहाँ पे। जैसे दिया क्वेश्चन आपका 80,000 80 लाख। अब 80 लाख को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कैसे करोगे, तो तरीका क्या है देखो। सबसे पहले आप लोग जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखो 8 into 10 की पावर 6, 8 into 10 की पावर 6। बस आपको जीरो काउंट कर लेना है और राइट कर देना है, इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन भी देख लें, सेकंड वाला जो पार्ट है क्या दिया आपका 4 1 9 2 5 0 0 0 0 0। अब ये दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, तो इसका तरीका क्या है, जितने जीरो आ रहे हैं पहले उसको काउंट करके 10 की पावर कर दो, ठीक है। इसको देखो 4 1 9 2 5 into 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5, 10 की पावर क्या हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो 1 9 2 5, ठीक है। अब आपको बता रखा है अगर डेसिमल हटाना हो, पॉइंट का 1 डिजिट हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000, 4 होगा तो 10,000। इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000, 10,000। हमने डेसिमल लगा दिया और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको अपना राइट कर सकते हैं इनटू 10 की पावर 5 इनटू 10 की पावर 5। अब बच्चों बताओ जो 10,000 है, अगर इसको 10 की पावर राइट करना तो कितने जीरो इसमें 4 जीरो है ना, तो 10 की पावर क्या राइट करोगे 4 4.1925 इनटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इनटू 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। नाउ अब जानते हो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड। उसको लिख राइट करें 4.1925 इनटू 10 की पावर 9, दिस इज योर आंसर। तो ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है, इसके अकॉर्डिंग तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, तो इसे नोट डाउन कर लो आप। देखिए बच्चे क्वेश्चन 5 में दिया है राइट इन यूजुअल फॉर्म। हाउ टू राइट इन यूजुअल फॉर्म, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे उनको हटाना होगा, इसमें डेसिमल आपको हटाना होगा। तो बताइए इनमें किससे मल्टीप्लाई करने के डेसिमल आपका हट जाएगा। मैंने बता रखा है डेसिमल पर 1 डिजिट हो तो 10 से, 2 होंगे तो 100 से, 3 होंगे तो 1000 से। डेसिमल 3 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, बिकॉज डेसिमल हट जाएगा। ये होगा 4.35682। अब 1000 में क्या होता है 10 की पावर क्या होता है 3, 1000 मींस 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से कर दिया, 10 की पावर 7 में से 3 क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 4, यहाँ होगा 10 की पावर 4। तो इस तरह से जब आपने इनका मल्टीप्लाई कर दिया
ये आएगा आपका 4 3 5 6 4 3 5 6। अब बताओ 10 की पावर 4 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं ना। सो ये विल राइट 4 जीरोस। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट ऐसे देख लें, यहाँ पानी में कितने नंबर है? 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। सो 7.5 इंटू 10, इसमें से एक 10 चला गया तो कितने 10 बचेंगे? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब 10 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप, क्या होगा? ये होगा 75 के पास पॉइंट बढ़ जाएगा। और 10 की पावर 2 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। ऐसे लगा दो जीरो के साथ में आंसर हो गया। आसान है ना? सो बच्चों, मैंने एक्सपेरिमेंटल पावर आपको पूरा रिवाइज करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा PT4 के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज चैप्टर 10 वहाँ पे रिवाइज आपका कराया जाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड प्लीज आइए स्कूल में अपना जो भी आपको किट दी जा रही है उसको आकर लेकर जाइए। ओके, बाय बाय।